So good morning, everyone. We have completed your classes for up to block 4. From today, we will take your revision regarding all the paper which I have taken. आज मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा जो हमने कंप्लीट किया है. And if you have any query, you are free to ask. What problem you have? Do you have? Any problem you encounter? Please inform me. Okay. If you have any problems, issues in your classes, you are free to ask. So today we will start the revision of our classes. I have completed up to block 4. Today we will revise from block 1 again. The paper course is SOM 6213 Law and Sociology. Law and Sociology. So इस पेपर के दौरान SOM 6213 Law and Sociology में what I have told you was that আমি যে কথা কইছি আগে যে এই পেপারের নিয়ম আর সমাজের যে যুক্ত পাবলিকের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যে যুক্ত আছে যে নিয়মের যে ইম্পর্টেন্ট আছে significance. So in the first class we started the main key objective was the main thing is to understand what does sociology of law means. Sociology of meaning of sociology of law was the main thing which we started in the first class. But you should understand that sociology of law, sociology is a subject, but is the subject discipline के दौरान अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट एरिया है और लॉ एक सोशियोलॉजी में topic area sociology ke field. So it tried to understand sociology of law is a subdiscipline that methodically examine law as a collection of social customs. It serves as an intermediary between political interests, economic forces, and the cultural normative order of society. The key focus area include legal behavior, institutional evolution, and the social construction of justice. So this is the idea. So this is the idea of sociology of law, that it examines नियम के धोरण जो इतिहास रीति रिवाज, how they are connected to customs, political interests, between political interests. The key focus includes legal behavior, institutional evolution, and the social construction of justice. So, इस sociology of law में तीन चीजें बहुत important. It's called theoretical pillars of socio-legal study: legal pluralism, legal consciousness, legal mobilization. Legal pluralism होते हैं बहुत सारे legal process है, legal customs, the coexistence of multiple legal orders. The coexistence of multiple legal order, state, customary, and religious, state, customary, and religious law. So kindly go through this 3 point for a while and try to think little bit of it. How these are an important topic.
these are very important issues. If you go through, as I have said, uh, what the importance of it is तीन number के दौरान, if you see it, why legal pluralism होते हैं coexistence of multiple legal orders, state, customarily and religious law within one society. जब हम नियम कहते हैं, सिर्फ सरकार के नियम नहीं होते हैं जो स्टेट, मगर जो हमारे समाज में धर्म के नियम है, और जो हमारे रीति रिवाज घर का हो, गांव का हो, और जो आपके संप्रदाय कम्युनिटी रूल्स, रिलीजियस रूल्स, government state rules. So pluralism, there are multiple legal orders. 2 नंबर में legal consciousness के understand, समझ जाना, that is the another part of the thing. सिर्फ नियम पब्लिश होना एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। नियम पब्लिश होने के बाद ये समझना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे पब्लिक इंटरप्रेट करेंगे, कैसे पब्लिक रेस्पॉन्ड करेंगे, दिस इज द 2 मेन पॉइंट ऑफ लीगल सोसाइटी। 3 नंबर में लीगल मोबिलाइजेशन। ये लीगल मोबिलाइजेशन जब सारे पब्लिक, जब वो लोग फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको लीगल मोबिलाइजेशन कहलाते हैं। इसका मतलब है कलेक्टिव एफर्ट टू यूज लॉ एज अ टूल फॉर सिस्टमैटिक सोशल चेंज एंड चैलेंजिंग पावर स्ट्रक्चर. So this is a very important tool, important process. If it comes in the exams, in the topic of what are the theoretical pillars of socio-legal study, you have to understand, number 1, legal pluralism. नियम सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, स्टेट, कस्टमरली, रिलीजियस लॉ. 2 नंबर में लीगल कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग. नंबर 3, लीगल मोबिलाइजेशन, लीगल प्रैक्टिस. पब्लिक को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यूज होना चाहिए. That is the 3 main pillars. And if we think about how law and sociology are connected, sociology of law, you have to understand that ये sociology of law, इस पेपर में 6-1 में law, sociology of law 19th सेंचुरी से शुरुआत हुए थे. मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजी के पायनियर थे, और एमिल दुर्खीम. These 2 writers were the pioneers of sociology of law. जैसे मैक्स वेबर एक मेन फाउंडर्स, कॉम के साथ मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम बहुत पॉपुलर राइटर्स है सोशियोलॉजी में. इस लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, नियम और समाज के स्टडी पर वेबर और दुर्खीम बहुत पॉपुलर राइटर है. That is the 2 main important writers. Like Weber, rational legal authority. So, rational legal authority. Rational legal authority and bureaucracy. और एमिल दुर्खीम का वो था जो नियम एक कलेक्टिव कॉन्साइंस है. इसका मतलब है लॉ एक एकता है, लॉ एक ঐক্য, लॉ एक साथ फोकस करते हैं, वो एमिल दुर्खीम के अनुसार. और यूनिट 2 में हमने सीखा था जो लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है. लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है. यूनिट 2 में हमने सीखा था लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन. जो आज हमने जो सीखा है इस पेपर में लॉ एंड सोशियोलॉजी
SOM 6213 में लॉ एंड सोशियोलॉजी, नियम और सोशियोलॉजी का क्या रिश्ता, रिलेशनशिप है। और अभी तक हमने सीखा है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस सोशियोलॉजी और लॉ इस पेपर में तीन चीज इंपॉर्टेंट है: लीगल प्लूरलिज्म, लीगल कॉन्शियसनेस, लीगल मोबिलाइजेशन। और जो इस लॉ एंड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट राइटर्स 19th सेंचुरी में है वेबर, दुर्खीम। और यूनिट 2 में लॉ एज सोशल इंस्टीट्यूशन, कैसे नियम एक इंस्टीट्यूशन की तरह समाज में मौजूद है। लॉ के बिना, लॉ एंड ऑर्डर के बिना एक हिंसा होती है, वायलेंस होती है। जैसे अभी त्रिपुरा में इलेक्शन, एडीसी इलेक्शन चल रहा है, आपने देखे होंगे न्यूज में, सोशल मीडिया में, कुछ एरिया में घटना होती है जब इलेक्शन होती है। मगर सोचिए, जब पुलिस नहीं होंगे, जब रूल्स नहीं होंगे, लॉ नहीं होंगे, कैसे हमारे समाज एक स्टेबिलिटी लाएगा, कैसे हमारे समाज एक पीस लाएगा। तो लॉ इंस्टीट्यूशन की तरह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जैसे परिवार भी इम्पोर्टेंट है, परिवार के बिना समाज नहीं चलते, इकोनॉमिक के बिना समाज नहीं चलते, पॉलिटिक्स के बिना समाज नहीं चलते। इतिहास से अभी तक हमने देखे हैं जैसे परिवार, फाइनेंस, पैसा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक चलते हैं, मगर इसके द्वारा नियम, लॉ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लॉ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंस्टीट्यूशन की तरह, समाज में स्टेबिलिटी, पीस लाने के लिए। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, लॉ एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे बिहेवियर समाज में रेगुलेट करती है। उसका पर्पस क्या है? स्टूडेंट रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट। 2 नंबर में डिस्प्यूट, कैसे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होती है, और कोर्ट आर्बिट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जैसे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड डिग्निटी फ्रॉम अब्यूज। सोशल जस्टिस, किसी का हक, किसी का जस्टिस, जैसे रेप, हैरेसमेंट, मर्डर, क्राइम। लॉ के बिना ये समाज में जो क्राइम और समाज में जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, इसीलिए एक जस्टिस होना, राइट्स देना, डिस्प्यूट देना, हमारे जो बिहेवियर, आचरण, डिस्प्यूट्स, राइट्स, जस्टिस, ये सब लॉ एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 3 नंबर में हमने सीखा था लॉ एक इंस्टीट्यूशन के मौजूद, लॉ इज इम्पोर्टेंट, इज ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, बट हमारे बिहेवियर भी कंट्रोल करते हैं। लॉ हमको कंट्रोल करते, पूरे समाज को। सोशल ऑर्डर, समाज को ऑर्डर लाने के लिए, समाज को एक ऑर्डर लाने के लिए, समाज को एक ऑर्डर लाने के लिए लॉ एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, समाज में ऑर्डर लाने के लिए। सोशल कंट्रोल इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजी यूज्ड टू मैनेज ह्यूमन बिहेवियर। Law serves as a formal tool influencing behavior through the threat of sanction and penalties for non-compliance. It balances informal norms, traditions,
with formal regulation to ensure stability and cohesion. वही हमने हमने सीखा था। समाज में एक अलग अलग धर्म होती है, एक अलग संप्रदाय होती है, एक अलग अलग जात होती है, एक अलग अलग बैकग्राउंड, रेस, कल्चर, फूड। इसके दौरान कुछ इतिहास से हमने देखे थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इतिहास से हमने देखे थे गुजरात राइट, इतिहास से हमने देखे थे कुछ त्रिपुरा में इंसिडेंट हुए थे। सो इट्स अभी चल रहा है ईरान, इसराइल, अमेरिका। तो लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एक कंट्रोल लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। सो इस लॉ को कैसे 4 तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं समाज में। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर लॉ पास होती है, और लेजिस्लेशन जो उसको पालन करने हैं, उसको हम पालन करते हैं लेजिस्लेशन के दौरान। जब पार्लियामेंट पास होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है, और जब पार्लियामेंट रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसको लेजिस्लेशन होती है, स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस। और इसके पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, लॉयर, और कस्टम एंड मोरालिटी। ये कस्टम्स एंड मोरालिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। जैसे समाज में आपके फैमिली के दौरान आपके परंपरा होंगे, आपके संप्रदाय में, आपकी कम्युनिटी में जो एक लोकल रूल्स है, लोकल रूल्स के बाद परिवार के रूल्स के बाद इनफॉर्मल रूल्स के बाद परंपरा में, इसके बाद हमारे स्टेट रूल्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वायलेशन एक्ट, इसके बाद लेजिस्लेशन। सो इस 4 तरीके से हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं। सो लॉ इज आल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। इट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट or indirect impact. Direct impact: legislation that explicitly forbids practices like child marriage, untouchability, untouchability. ये direct impact है, समाज में चेंज ले आने के लिए लॉ भी सोशल चेंज के द्वारा एक माध्यम है। और इनडायरेक्ट, और उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, लॉ लाइक मैंडेटरी एजुकेशन, that shift cultural values and economic frameworks over time through institutionalized norms. Law like mandatory education that shift cultural values and economic frameworks over time through institutional norms. एक इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होती है, जो हमारे संस्कृति में, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो लॉ एक सोशल चेंज की दौरान। So in this block one law and sociology, इस पेपर में लॉ एंड सोशियोलॉजी SOM 6213 में जो हमने सीख पाए हैं वो है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। एक सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, एक इम्पोर्टेंट एरिया है। एक सोशियोलॉजी डिसिप्लिन उसको लॉ को एग्जामिन करते हैं, उसका स्पेशल फोकस होते हैं
जैसे लीगल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन एंड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। और इसके मध्यम एक तीन चीज इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में, लीगल प्लूरलिज्म, लीगल कॉन्शियसनेस, लीगल मोबिलाइजेशन। लीगल प्लूरलिज्म, लॉ सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारे लॉ है, वो स्टेट कस्टमरी रिलीजियस लॉ, धर्म का, परंपरा का और स्टेट का। लीगल कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है और लीगल मोबिलाइजेशन प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशनल ओरिजिन सोशियोलॉजी ऑफ लॉ 19th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था। समाज में नियम को अंडरस्टैंड कैसे होते थे। वेबर दुर्खेम एक इम्पोर्टेंट राइटर थे। और लॉ सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक हमारे इंस्टीट्यूशन की तरह एक इम्पोर्टेंट चीज भी है। जैसे धर्म भी इम्पोर्टेंट है, परिवार भी इम्पोर्टेंट, पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट, मगर नियम एक इंस्टीट्यूशन की तरह है। हमारे बिहेवियर को, हमारे डिस्प्यूट में, राइट्स में जस्टिस दिलाने के लिए लीगल सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा समाज में पीस ले आने के लिए, सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ले आने के लिए लॉ भी एक रूल ऑफ लॉ सोशल कंट्रोल करती है। एग्जांपल्स कॉन्स्टिट्यूशन से, लेजिस्लेशन से, जुडिशियल से, कस्टम्स एंड मोरालिटी से। कस्टम्स एंड मोरालिटी जी आपके परंपरा, रीति रिवाज से, लोकल में जुडिशियल प्रेसिडेंस, स्टेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट रूल्स, लेजिस्लेशन जो रूल्स पार्लियामेंट में पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब पास करने के बाद होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो हमारे प्रीएम्बल, फ्रीडम ऑफ राइट्स, राइट्स टू एक्सप्रेशन वो होते थे। और लॉ के इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। डायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और इनडायरेक्ट जैसे कल्चरल भी जो इनडायरेक्ट होती है, इकोनॉमिक भी इनडायरेक्ट भी होती थे। Do you have any question on block 1, law and sociology? आप मुझे पूछ सकते हैं। Any question? Do you have any question? If we don't have a question, let's move on to the second class, that is on urban sociology. I'll just take few minutes revision.